दो एस्पेक्ट्स होने चाहिए मेरी नज़र में, और एम होना चाहिए, ड्राइव होनी चाहिए उसके पीछे। लेकिन रियलिटी ये है कि like what I like is to get people with me before time. उससे मेरा फायदा ये होगा कि I get to prepare you आहिस्ता आहिस्ता, slowly at my own pace, and then when the time comes and we finally select an FYP, we can basically relate to it and we can work deeply on it. तो उसको जो सा होगा वो एक किक स्टार्ट जो सा वो किया जा सकता है। Seriously? Like there is abhi there is not a single idea on the plate right now. Okay, right now there is room for discussion. You may bring some ideas, I already have some with me, and then we can discuss on them, and then we can start working on some background knowledge, some groundwork, और उसके बाद जो सा होगा वो will have to kind of move on with that. But there has to be like the first starting point. There seems to be a problem with my installation, at least, that I couldn't get it to work. So I would be reverting back to some SolidWorks 2016 maybe, the next lab, वो मैं आपको वहां से दिखा दूंगा कि इसको यूटिलाइज किस तरह से करना है। लेकिन टुडे इसको देखिएगा, जरूर इसको एक्सप्लोर कीजिएगा। दिस इज वेरी यूजफुल, लाइक वी कैन जस्ट put in gears and we can just change different parameters for the gears, like the diametral pitch and number of teeth and whatnot, and then we can just right away get them to work. And if you start making a gear part by yourself, it would take a lot of time. तो ये एक लाइब्रेरी है पूरी पार्ट्स की, जिसके अंदर मुख्तलिफ टूल्स हैं जो कि आप यूटिलाइज कर सकते हो, और इसके अंदर तकरीबन हर तरह का गेयर है, तकरीबन हर तरह का बेरिंग है इसके अंदर, जिसको आपने बस ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, कॉन्फ़िगर करना है, और उसको आप यूटिलाइज कर सकते हो। तो ये सॉलिडवर्क्स टूल बॉक्स के अंदर, which is a part of the design library, you get a toolbox that you can work with. तो आज एक्सप्लोर करते हैं हम एक माइनर फीचर को, जो कि है SolidWorks Hole Wizard. This can be located in the features toolbar, and this hole wizard allows you to create holes and threaded holes for your screws. और ये इसके अंदर जो स्टैंडर्ड स्क्रू साइजेस अवेलेबल हैं, तो हर साइज का स्क्रू भी अवेलेबल नहीं होता, तो स्टैंडर्ड थ्रेड साइजेस के साथ, और स्टैंडर्ड मतलब थ्रेड पिचेस के साथ, और स्टैंडर्ड थ्रेड लेंथ के साथ, और स्टैंडर्ड थ्रेड डायमीटर्स के साथ जो होते हैं स्क्रूज अवेलेबल होते हैं। तो उसके हिसाब से, बिकॉज इफ यू आर फॉर एग्जांपल डिजाइनिंग अ केसिंग फॉर अ पार्ट, तो केसिंग में अगर स्क्रू होना है आपके किसी भी उसके लिए, तो आपने वहां पे होल करना होगा, उसके अंदर थ्रेड्स ऐड करने होंगे, होल्स की टाइप्स होंगी डिफरेंट। तो उसके लिए यू कुड simply either use extruded cut, लेकिन extruded cut is a very generic thing. होल विजार्ड के अंदर आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं just for making holes, especially for creating holes that could be used with screws, या that could be used maybe with rivets. तो इस तरह के holes जो है वो आप इसके अंदर create कर सकते हो। So when you select this hole wizard, it takes you to the property manager and it says hole specification. So you need to give some specifications and select some types from it first, and then you can move on different things, work with different things. सबसे पहले ये एक्सप्लोर करते हैं कि इसमें क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। ये होल टाइप के अंदर आप देख रहे हो कोई 9 तरह की आपके पास ऑप्शंस यहाँ पे ही अवेलेबल हैं। The first one is the counter bore hole. Counter bore hole, as you can see, has a counter bore at the top, जहाँ पे जो screw head होगा वो lie करेगा। But this one is for a flat head screw. Screw का जो head है वो flat है। The second one
is a countersink hole. Countersink hole ऊपर से chamfered है और नीचे से it carries whatever distance or depth you give it. Then there is a simple hole without any surface on the top. Straight एक option. Tapered tap है. Legacy hole है. Legacy hole maybe some options that you get for height, width and length. इसके अलावा काउंटर बोर्ड स्लॉट है, काउंटर सिंक स्लॉट है और एक सिंपल स्लॉट है। ठीक है, तो ये कुछ ऑप्शंस आप होल से रिलेटेड या आप वैसे भी यूज कर सकते हो, एक्सट्रूडेड कट फीचर यूज कर सकते हो, स्लॉट कट कर सकते हो, बीच में से कुछ भी कर सकते हो, बट दिस वन गिव्स यू कंट्रोल ओवर व्हाट kind of slot that you want to or what kind of hole that you want to make, and this one also gives you standardized options for different hole sizes matching different screw sizes. फिर आपके पास मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स हैं जिसको आप फॉलो कर सकते हो regarding creating your holes. So you could work in inches, in metric, and there are some other standards that are for different other components. ISO के standards हैं कुछ, ये इनके ऊपर में इसमें से आप कोई भी चूज कर सकते हो. The default option is ANSI inch option. फिर आपने टाइप बताना है किस तरह के आप उसके लिए जो सा है वो होल क्रिएट करें. फॉर एग्जांपल, आर यू क्रिएटिंग अ फिलिस्टर हेड स्क्रू या हैवी हेक्स बोल्ट के लिए आप बना रहे हो होल को, या हेक्स बोल्ट के लिए बना रहे हो, एंड सो ऑन. इसी तरह से इफ यू चूज द सेकंड ऑप्शन, अच्छा अब ये अगर मैंने पहली ऑप्शन चूज की हुई है दैट सेज काउंटर बोर. काउंटर बोर जिस तरह के एप्लीकेशन में यूज हो सकता है, जिस तरह के स्क्रू के लिए यूज हो सकता है, वो आपके पास यहाँ पे नीचे आ रहा है. ठीक है, सो फॉर एग्जांपल हेक्स बोल्ट्स जो से होते हैं उसके लिए काउंटर बोर होल होता है. हेक्स बोल्ट को मैं अगर चूज करूंगा तो नीचे होल स्पेसिफिकेशंस आ रही हैं. होल स्पेसिफिकेशंस के अंदर साइज है उसका इन इंचेस, उसकी फिटिंग है, नॉर्मल है, क्लोज है, लूज है. फिटिंग क्या होती है जी? फिटिंग होती है हाउ क्लोजली योर पार्ट इज गोइंग टू मेट विद वन अनदर इन फिजिकल सेंस, जब आप उसको उसके अंदर यूटिलाइज करते हो. तो क्लोज फिटिंग का मतलब होता है कि होल साइज आपके स्क्रू से थोड़ा सा छोटा होगा. नॉर्मल फिटिंग के अंदर होल साइज इज ऑलमोस्ट इक्वल टू योर स्क्रू साइज और स्क्रू डायमीटर जिसको हम कहते हैं. एंड देन लूज फिटिंग के अंदर होल साइज इज अ लिटिल बिगर देन योर स्क्रू साइज. फिर एंड कंडीशंस हैं, लाइक डज द होल गो थ्रू ऑल और इज इट अ ब्लाइंड वन और डज इट गो अप टू द नेक्स्ट part or does it go up to the next feature or vertex or a surface. तो कुछ ये conditions हैं. उसकी directions हैं, you could reverse the direction. फिर कुछ और options हैं like head clearance की option है, you could give some clearance to the different sides. और उसके बाद उसकी कुछ और options हैं like the top width, the lower one and so on. तो इसको हम इसके अंदर एक deploy करके देखते हैं, फिर कुछ और ऑप्शंस इसकी नोन से होंगे वो एक्सप्लोर करेंगे. सो we'll look into the first two today, the counter bore and the counter sunk one. The counter bore होल टाइप है, इसको अप्लाई करते हैं. एप्लीकेशन मैंने चूज किया कि दिस इज गोइंग टू बी हेक्स बोल्ट, इसके साथ ये जो सा होगा वो यूज कर रहा हूँ मैं. साइज इसका देख लेता हूँ, साइज 1/2 इंच. फिट नॉर्मल है, इट गोज थ्रू ऑल. और इसको चेक कर देता हूँ. अच्छा, now it asks me about the position of the hole and position of the hole through the center point, through the axis of the hole. तो it takes me to the next step जिसके ऊपर position है. जैसे मैंने इसको यहाँ पे ओके किया था, it takes me to the next step और ये मेरे से कहता है कि पोजीशन करें अब आप होल को. तो as I move my cursor around on the surface in the main work area, तो आप ये देख सकते हो वो उसने ऑटोमेटिकली उसको जो सा वो एक जनरेट कर दिया हुआ, एक प्रोफाइल जनरेट कर दी हुई है. सो आई कैन
I can just plug it in any place that I want it to be. Position करने के बाद आप ये देख सकते हो. Let me put another one. ये इसने दो काउंटर बोर होल्स ऑटोमेटिकली जो सा वो क्रिएट कर दिए हैं. किस चीज के लिए क्रिएट किए हैं? फॉर अ हाफ इंच हेड बोल्ट 1 एंड बोल्ट 2, इसने दो यहाँ पे क्रिएट कर दिए. ठीक है. अब इसके अंदर क्या फीचर्स हैं? देयर इज द मेन थ्रेड एरिया जहाँ पे वो बोल्ट ऐड होगा. देयर इज द रेस्टिंग प्लेस फॉर द बोल्ट हेड. कॉर्नर पे एक शैम्फर जो सा इसने ऑटोमेटिकली जो सा वो क्लियरेंस के तौर पे ऐड कर दिया हुआ. तो ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं. जब आप नट्स एंड बोल्ट्स के साथ ट्रीट कर रहे होते हो तो वो आप मे बी द नेक्स्ट टाइम इसको हम दोबारा से जब देखेंगे तो मैं आपको उसके मैचिंग साइजेस जो उनसे होंगे वो डिज़ाइन लाइब्रेरी के टूल बॉक्स से भी निकाल के दिखाऊंगा, बिकॉज करंटली द टूल बॉक्स इज नॉट वर्किंग. तो नेक्स्ट वीक में आपको इस होल विजर्ड के साथ जो मैचिंग साइजेस होंगे टूल बॉक्स से थ्रेड्स के और स्क्रूज के, मैं आपको उसके साथ मैच करके इसके साथ दिखाऊंगा. But you also have other options like you could choose it for a different type of a screw, maybe not just a simple hex bolt. Let's see, a hex washer screw, इसके लिए हम choose कर सकते हैं. उसकी साइजिंग फर्क है, नंबर 2, नंबर 3, 4 एंड सो ऑन. राइट. तो ये डिफरेंट तरह के साइजेस के अंदर कमर्शियली अवेलेबल होते हैं. उसी साइजेस की जो स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं सॉलिड वर्क्स के होल विजर्ड के अंदर बिल्ट इन अवेलेबल हैं और आपने यहीं से चूज करके इसको अप्लाई करना है. So a general rule of thumb is that you choose for a same project like as small number of sizes as you want for the total screw. So आपने अगर मसलन 25 स्क्रू टोटल यूज करने हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, ट्राई टू स्टैंडर्डाइज द वैल्यूज. उसके अंदर जो सा होगा कोशिश करो 2-3 डिफरेंट साइजेस से ज्यादा साइजेस ना आपको यूज करने पड़े. इस तरह से अपने डिजाइन को जो सा वो रखा जाए. So a good example might be if someone has opened a laptop up, तो उसके अंदर जो स्क्रू साइजेस होते हैं वो देखो 3-4 तरह के टोटल साइजेस होते हैं. स्क्रूज बेशुमार होते हैं जो खोलने पड़ते हैं, लेकिन टोटल साइजेस 3 से 4 तरह के होते हैं. M4 होता है, M2 होता है और इस तरह के एक M3 होता है. ये 3-4 साइजेस सिर्फ इस्तेमाल होते हैं. तो एक प्रोजेक्ट के अंदर अगर आपने एक जगह के ऊपर जो सा है वो लेट्स से M6 साइज यूज किया हुआ है स्क्रू का और आपने दूसरी जगह पे 8 यूज कर लिया, अगली दफा तीसरी जगह पे 10 यूज कर लिया, तो आपको उतनी डिफरेंट जगहों से उसको प्रोक्योर करना पड़ेगा. उतनी डिफरेंट जो सा होगा उसके लिए आपको अरेंजमेंट्स करनी पड़ेंगी, होल साइजेस बीच में ऐड करने पड़ेंगे, ड्रिलिंग की अरेंजमेंट्स डिफरेंट होंगी उसके अंदर. और फाइनली एक और कोशिश ये करनी है कि इफ यू आर एम्प्लॉइंग अ फ्लैट हेड स्क्रू या जो फिलिप्स जो टाइप का स्क्रू होता है जिसको दो मुंह वाला स्क्रू कहते हैं, तो वो दो मुंह वाला स्क्रू अगर यूज कर रहे हो तो वो पूरे प्रोजेक्ट में एक जैसा इस्तेमाल करो. अगर 4 मुंह वाला स्क्रू ड्राइवर के लिए आप डिजाइन कर रहे हो अपने प्रोजेक्ट के अंदर तो उस तरह का जो सा वो अपने उसमें डिजाइन करके उसके मुताबिक जो सा वो सारों के लिए एक जैसा इस्तेमाल करें. तो ये अच्छे कुछ डिजाइन आइडियाज होते हैं जिसके ऊपर आप वर्क कर सकते हो. तो मैंने क्या किया, आप जस्ट चेंज्ड द स्क्रू टाइप और आप ये देख रहे हो ऑटोमेटिकली जो सा वो it creates the right profile for whatever screw type that you have selected in. और इसके अंदर से आप ये कंडीशंस इसकी जो सी है वो ऑटोमेटिकली चेंज कर सकते हो. अब फर्क क्या है कि इसका आपने जो टोटल साइज है वो आपने बेसिकली स्टैंडर्ड साइजेस के अंदर से चूज किया और ऑटोमेटिकली उसने इसको जो सा इसके ऊपर अप्लाई कर दिया. तो अगर आप यही काम करते हैं एक्सट्रूड कट से तो आपने दरमियान वाला कट अलग करना था, बाहर वाला अलग करना था और उसके ऊपर शैम्फर अलग से अप्लाई करना था. इसी तरह से हमारे पास ऑप्शन है काउंटर सिंक होल्स की. काउंटर सिंक होल्स हैव अ टेपर्ड अपर एंड, जो कि 3-4 तरह के आपके पास ऑप्शंस है इसके अंदर, लाइक द फ्लैट हेड स्क्रू, द ओवल हेड स्क्रू, द काउंटर हेड कैप स्क्रू, द फ्लैट हेड स्क्रू. इस तरह के आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं और इसमें मुख्तलिफ साइजेस हैं. सो आई विल चूज मे बी साइज नंबर 8 और उसको जब मैं अप्लाई करता हूँ अपने
कंटेंट डिजाइन के ऊपर, तो आप ये देख रहे हो कि दिस टाइप ऑफ स्क्रू हैज ओनली ए टेपर्ड हेड। तो वो टेपर्ड हेड जो सा होता है उसकी जो जो सरफेस होगी आपने कहाँ पे रखनी है, उस हिसाब से यहाँ पे टेपर्ड एक होल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो काउंटर बोर और काउंटर संक आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्क्रूज दैट आर यूज्ड कॉमनली। और उसके अंदर जो सा होगा, अगर आपने उसके लिए कोई होल क्रिएट करना है, especially for creating some fixtures, especially for creating some compartments or some casings for your design, तो आपने हमेशा उसको होल विजार्ड में से जाके स्टैंडर्ड वैल्यूज के मुताबिक चूज करके उसको अप्लाई कर देना। सो इट्स वेरी इजी एंड इट्स वेरी इंट्यूटिव टू यूज। इसके अंदर कुछ और ऑप्शंस भी हैं, लाइक यू कुड ऐड थ्रेड्स ऑन टॉप ऑफ इट एज वेल। सो इफ आई चूज द थ्रेड ऑप्शन, तो यहाँ पे जो से मेरे से पूछ रहा है थ्रेड लोकेशन, और उसके बाद ऑप्शनल स्टार्ट लोकेशन है कि स्टार्ट कहाँ से करना है थ्रेड को। तो नेसेसरी क्या मुझे इसको बताना है कि थ्रेड एज ऑफ सिलेंडर कहाँ पे जो सा वो लाई कर रहा है। So what I'll do is I'll select the edge of the thread. Number one. Number two, you could give it some angle, start angle, कहाँ से थ्रेड ने स्टार्ट होना है, कुछ एंड कंडीशंस और डेप्थ एंड थ्रेड की, फिर उसके बाद स्पेसिफिकेशंस हैं। इंच डाई से बना हुआ है, इंच टैप से बना हुआ है, मैट्रिक टैप की कुछ 3-4 स्पेसिफिकेशंस हैं, और ये साइजेस हैं उसके। सो द थ्रेड साइज दैट यू यूज शुड बी मैचिंग विद द स्क्रू साइज जो कि आपने इसके साथ अप्लाई करना है। और कुछ ऑप्शंस हैं, लाइक राइट हैंडेड थ्रेड है, लेफ्ट हैंडेड थ्रेड है, ट्रिम विद द स्टार्ट एंड सो ऑन। ये कुछ ऑप्शंस हैं जो कि राइट लेफ्ट हैंडेड के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हो। प्रीव्यू की कुछ ऑप्शंस हैं। तो इफ आई कंप्लीट इट, तो यहाँ पे उसने थ्रेड्स बना तो दिए हैं, बट अनफॉर्चुनेटली आई चोज अ वेरी थिन साइज, तो द थ्रेड्स आर वेरी थिन, यहाँ पे देखना मुश्किल हो रहा है। लेट मी रीडू दिस थिंग। So if you want to add threads, the first thing you need to do is choose the edge of the cylinder, edge of the hole where you want to begin the threads, and then choose the thread sizes and thread depth. थ्रेड साइज आपने चूज करना है, और उसके बाद ऑप्शंस को अप्लाई करना है। तो आप ये देख सकते हो कि ऑटोमेटिकली उसने इस स्क्रू के अंदर जितनी डेप्थ का हमने कहा था वहां पे उसने थ्रेड्स भी ऐड कर दिए। तो यू कुड डिजाइन holes for your screws or you could design threads for those holes as well। इन सारी चीजों को जो सा वो आप अपने होल विजार्ड के थ्रू जो सा वो अप्लाई कर सकते हो। And you have options for all the standard sizes available. For the most common standard sizes available, you have all the options that you can use with it.
So explore this feature, work with it, see what kind of options are available for you guys और इसको ना सॉग अब apply करें. We'll explore it in a little bit more detail later on. So आज की lab के अंदर we have learned about a feature which is the hole wizard that allows you to create standard sized holes for different screws and bolts that you can utilize in your projects.